گھر سے نکلا ہے، پادری مقصود صاحب ان کے گھر سے یہ سب کچھ نکلا ہے، اور مبشر فریاض صاحب ادھر یہ مبشر فریاض صاحب ان کے گھر سے نکلا ہے، اور ہمارے پادری صاحبان پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہیں جو دور سے انہوں نے پیسہ دیا ہے کہ سامان دیا جائے کھانے پینے کا، اور جو اسلام آباد کی جو ہماری کلیسیا ہے، ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں لوگوں نے، ہر طرح کے لوگوں نے کوشش انہوں نے کیا کہ وہ کپڑا دیا جائے جو پہننے کے قابل ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی پیس تھوڑا کمزور اگر آ جائے تو میں التماس کروں گا کہ وہ نہ تو گالی دے نہ برا سوچے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، دکھ نہ ملے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ کے یہ کچھ دے گئے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ بہتر ہو۔ خداوند معاف کرے، لوگ جب جن کے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ کپڑے دیں تو ان کے خوشی سے پہنے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ میری میڈم نے دی ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو یوں لینا ہے کہ یہ میری بیٹی نے، میری بہن نے، میری بزرگاں نے، میری بہن نے مجھے بھیجے ہیں۔ تو ہم جو ہیں کوئی بڑے امیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی آپ کی طرح ہیں۔ چلو آپ کے تو اپنے گھر ہیں، ٹوٹ گئے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے اس طرح سے۔ میں اسلام آباد میں کرائے پہ رہتا ہوں، مبشر صاحب ہے کرائے پہ رہتے ہیں، پادری صاحب بھی کرائے پہ رہتے ہیں۔ پادری صاحب کا چلو اپنا گھر ہے، خدا نے ان کو دیا ہے، ریٹائر ہو کر آئے ہیں۔ تو مطلب ہم سب خادم ہیں اور ہم ملک میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے چرچ کو تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے ہوئے ہیں ہم نے گورنمنٹ پاکستان سے اس کی رجسٹریشن لی ہے، اور ہم نے یہ پہلی بار اپنی 23 سالہ خدمت کے اندر جو میں پہلی بار اس طرح سے نکلا ہوں کہ کسی اس شہر میں سندھ میں آ کر ہم کسی کی کوئی مدد کر سکے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کی ہے، پر وہ اسلام آباد کے اندر ہم نے کام کیا ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، دیگر لوگوں کی مدد کی ہے جو اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو برا نہیں لینا۔ میں کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا، خدا کے مذہب پر کھڑا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ کے آگے تک جائے، تاکہ یہ جو آپ کا کب نکلا ہے نا، خدا کو ایسا بندہ دے کہ آپ کا کب نکل جائے۔ یہ سرکاری جگہ ہے، کچھ ایسا ہمیں پیکج مل جائے، خدا ایسا کوئی آسرا دے دے کہ یہاں پر ہی کہیں دوسری جگہ پر جگہ پرچیز کر کے جو ہے وہ وہاں پر آپ کو بٹھایا جائے۔ پر یہ کوشش کا ہے، میں نے وعدہ نہیں کر رہا، کیونکہ وعدہ جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ پر آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے دن رات کہ خدا اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ تو یہ میرا سیاسی بیان بھی نہیں ہے، میں نے کوشش کہا ہے، کیونکہ آپ میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میرے بزرگ بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ تو کلیسیا نمبر 1 پر غریب نہیں ہوتی، کلیسیا غریب نہیں ہوتی۔ یہ سامنے ایک آیت لکھی ہے بڑی خوبصورت، اعمال کی کتاب 20ویں باب کی 35ویں آیت لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھے، کوئی پڑھے ادھر سے سامنے سے، یہ سامنے لکھی ہوئی ہے۔ جی پادری صاحب آپ پڑھ دیں، کوئی پڑھ دیں جلدی سے۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی، میں نے تم کو سب باتیں کر کر دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا۔ اچھا، نمبر 1 کیا ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کر کر دکھایا ہے۔ کس نے دکھایا یہ کر کے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پر یسوع کی بات نہیں ہے، یہ یسوع نہیں کہہ رہا، یہ بندہ رسول کہہ رہا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول یہ بات لکھ رہا ہے کہ میں نے کر کر دکھایا۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تمبو سیتا تھا، خیمے بناتا تھا، اور ساتھ منادی کرتا تھا، اور غریب اور یتیم کی وہ مدد بھی کرتا تھا۔ یہ بائبل مقدس کے اندر انجیل کی منادی کے ساتھ ساتھ غریب اور محتاج اور بیوہ کی مدد کرنا یہ بھی کلام کی تعلیم ہے۔
जैसे दाई की पाबंदी के साथ देनी है, वैसे ही पाबंदी के साथ गरीब और बेवा और यतीम का ख्याल भी करना है। आमीन। ये ख्याल मैंने नहीं किया, ना पादरी साहब ने किया, ना मुबशर साहब ने, ना पादरी साहब ने, ना बाकी लोगों ने। ये ख्याल आपका खुदा ने किया है। किसने किया? ये खुदा ने हमें तैयार किया है। वरना कौन किसी के लिए लाख 1.5 रुपया लगाकर जहां अखराजात करके किसी को देने के लिए आता है? मैं ये कह रहा हूं कि आपका फिक्र यीशु ने किया। आमीन। पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हें कर कर दिखा दिया है कि कैसे क्या करनी है। पढ़िएगा दोबारा से। इस तरह मेहनत करके कमजोरों को इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए। खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए। ये उसने खुद कहा, ये उसने खुद कहा। देना लेने से मुबारक है। देना लेने से क्या है? कलीसिया एंज नहीं, कलीसिया एंज। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम आपको देने हैं तो मैं आपको कह रहा हूं अभी यूं करें। हमें करना चाहिए। अगर खुदा हमें देता है ना किसी भी तरीके से, तो खुदा के दिए में से हमने भी आगे किसी उसको देना है जो कि बड़ा गरीब है, जो हमसे नीचे है। क्योंकि दुनिया के अंदर 4 क्लास के लोग हैं। अपर क्लास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले नंबर पर वो जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग हैं। दूसरे नंबर पर वो जो उनसे थोड़े छोटे हैं। तीसरे नंबर पर हर वो आदमी है जिसके पास मोटरसाइकिल, जिसके घर में बेड, जिसके घर में फ्रिज, जिसके घर में सोने के लिए सब चीजें हैं, मतलब आम जिंदगी वो बसर करे, वो तीसरे नंबर का बंदा होता है। चौथे नंबर पर वो होता है जिसके सर पर ना छत हो, ना कुछ भी ना हो, उसके बड़े बुरे हालात हो, सुबह की खाइए तो शाम का पता नहीं है। ये चौथे लेवल का बंदा होता है जो बड़ा गरीब होता है। हमने उसका ख्याल करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी जिंदगी में ये किया। उसने बेवा के लिए बहुत कुछ किया। बेवा को देखकर यीशु के दिल टूट गया और उसने उसके मुर्दा बेटे को जिंदा किया। उसका वही वसाइल था, वही वसीला था। बेवा और यतीम और गरीब का मदद करनी ये बड़ा जरूरी है। सब बोले हालेलुया। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है। इस वजह से नहीं कि मेरे पास है, इस वजह के से कि यीशु ने हमें ये हुक्म दिया या खुदा के कलाम के मुताबिक ये खुदा की तालीम है। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो खुदा के लोग हैं, मसीह की कलीसिया, मसीह का बदन है, आपने एक दूसरे का ख्याल करना है। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना है। अगर खुदा आपके हालात बेहतर करता तो आप अपने हमसाय के बारे में सोचें। आमीन। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी हम एक दुआ करेंगे ताकि हम अगले काम को शुरू कर सकें और लोगों को जब आपको बुलाया जाए तो आप अपने हिस्से को लेकर उससे अपने घर में जाकर शुक्रगुजारी करें खुदा है। आमीन। शुक्रगुजारी करें और खुदा से बरकत मांगे। खुदावंद मुझे भी तौफीक दे कि जैसे तूने मेरी फिक्र की है और मेरे लिए तूने ये भेजा है, मुझे भी तौफीक दे ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं। आमीन। कोरोना के अंदर जब बड़े बुरे हालात हुए तो मुझे कुछ जगह से जो है वो चीजें मिली। उन्होंने मुझे बुलाकर मुझे पैसे भी दिए और मुझे चीजें भी दी। तो मैंने क्या किया, मैंने उन घरों को दिया जिनकी जॉब छूट गई थी, हालांकि वो ठीक ठाक थे। यानी कि ऐसे ऐसे खानदान जो मुझे महीने की 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया दाई की देने वाले थे। महीने बाद एक ही घर से 10,000 रुपया मुझे मिलता था। वो मंत्री मुझे बुलाकर 10,000 रुपया दाई की का हदिया मुझे वो देते थे। पर उनकी जब नौकरियां छूट गई तो फिर मैंने उनके साथ क्या किया कि मैंने एज ए पासवान होने की हैसियत से 2 से 3 महीने 6,000 का 7,000 का मंत्री जो है ना उन्हें राशन लेकर देता था। तो उनका सिलसिला चलता रहे। ये मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा, मतलब किसी के साथ भी अप डाउन हो सकता है। आप जिसके वसीला से पलते हैं, अगर कभी आपको उसको पालना पड़ जाए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, खुशी से हमें करना चाहिए। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये आपका अपना चर्च है। मेरे कहने का मतलब है ये न्यू जेरूशलेम चर्च है, मतलब एनजेसी से मुराद है न्यू जेरूशलेम कांग्रीगेशन पाकिस्तान। ठीक है, खुदा की जमात इसका नाम है। ठीक है, एनजेसी वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है,
ये आपका है। कभी भी आपको कोई मसला हो तो आप भाई से रब्ता करें, हमसे जो भी हो सके हम आपके साथ हैं, पर हम वादा नहीं करते कि हम ये करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ खड़े हो सके, क्योंकि हमारे पास कोई गोरा और कोई काला नहीं है, असी आप ही हैं। खुदा आपके लिए या मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। सब बोले हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आपके दिल में कुछ नहीं होना, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं मजदूर पर खड़ा हूं। ये आपके मसीह बहन भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने, जो कि आम मजदूर या जॉब करने वाले हैं, उन्होंने आपकी मदद की है कि हमारे बहन भाई वहां पर परेशान हैं। मजीद मैंने यहाँ से वीडियो बनाई है, मैंने इनको दिखानी है या बताना कि ये उनकी हालत है। ठीक है, मजीद अच्छे लोगों से भी बात करेंगे कि खुदा ऐसा करे कि हो जाए। क्योंकि इस्लामाबाद में एक अदारे ने ये काम किया कि वहां पर एक कॉलोनी थी, वो गिर गई। तो ऐसा हुआ कि उनका ऐसे भाग जागे कि किसी ने आकर उनको फ्री जमीन लेकर दिया हाईवे पे। जैसे आप हाईवे पे बैठे हुए ना, एक बार के अंदर वो बिल्कुल हाईवे पे है जहाँ पे मेरा चर्च है। तो वहां पर एक बड़ी कॉलोनी बनी और तकरीबन 19 कनाल जगह एक आदमी ने खरीद के दी और सारे मसीहों को दे दी, और वो वहां पर बैठे हुए अपने घर बनाकर। तो मेरे दिल में रात का यही ख्याल चल रहा है कि ये काम अगर इनके साथ हो जाए तो कम से कम करके घर तो ना गिराए, क्योंकि सामने तो थोड़े नाल ही है। तो जब हम रात को डाले तो मेरी कोशिश ये थी कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा डाला जाए, ताकि हमारे बहन भाई को प्रॉब्लम ना हो। आमीन। तो खुदा ने चाहा तो ईस्टर के मौका पर भी खुदा ने जो तौफीक दी वो भी आपके साथ किया जाएगा। सब बोले हालेलुया। ये खुदा के जलाल के लिए है। सब बोले हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। ये भाई साहब दुआ करवाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। यहाँ पे मुकामी जो चर्च इंचार्ज हैं, मैं चाहूँगा वो आए और उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आप दुआ कीजिए, दुआ करो, दुआ कीजिए। हेलो। कदूस कदूस खुदा खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और रहम दिल और पाक और कदूस खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, आज नई रोशनी के लिए। खुदावन खुदा, जो आज इन लोगों के खुदावन इस बस्ती की खुदावन खुदा तूने मोहता कर दिखाया। खुदावन खुदा ये रात सोए हुए थे और तेरा एक निश्चय में यूँ लिखा गया है कि अपने महबूब को वो सोता हुए को नींद में ही देता है। कदूस बाप, जो तूने उनकी रहनुमाई और मदद की है, खुदा बाप इन्हों को पाए भरकत ठा, अपना आसमान खोल, ताकि तब तक खुदावन खुदा इन्हों को ये तेरे खुराक दी जा रही है, जहाँ खुदावन खुदा इन्हों के खाने का बंदोबस्त, जहाँ खुदा बाप जो इनके पैसे टके का किया है, इन्हें कपड़े लीड़े का, खुदावन खुदा जब तक ये दें तब तक तेरा आसमान खुला रहे। और खुदावन खुदा इन्हों के ईमान की मजबूती को बख्श, इन्हों को हौसला और तसल्ली, और खुदावन खुदा तसल्ली तो तेरे पास है। खुदावन खुदा, जो घर हमारी बस्ती टूटी है, ऐ खुदावन खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो तू अपने खादमों को, अपने बंदों को अपनी इन्हों की मेहरबानी करने के लिए, इन्हों पर रहमत का हाथ रखने के लिए और इन्हों को तसल्ली देने के लिए आए हैं। खुदावन खुदा इन्हों के दिलों से इन्हों को खोल दे। खुदावन ये जितने लोग हैं, खुदावन खुदा ये खाद खराक नहीं, बल्कि खुदावन तुझसे बरतें लेकर जाएं और खुदावन खुदा अपनी ढोलियां भर के जाएं, और खुदा बाप इन्हों के साथ होना, इन्हों की मदद करना। और जिन पादियों ने, जिन खादमों ने खुदावन खुदा ये तेरा खराक का इन्हों का बंदोबस्त किया है, खुदावन खुदा इन्हों को इससे में बहुत सारी भारी बरकत देना, ऐसी बरकत जैसे तू बाप इब्राहिम को बरकत में बरकत देता था। ये सब तेरे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन। अच्छा, एक और दूसरा ऐलान ये भी है कि आप सब ने जो कपड़े इनमें मौजूद हैं, हमें पता नहीं है किसको कौन सा कपड़ा मिलेगा, तो आपने सब ने मिल के अगर किसी के साथ तब्दील करना हो तो आप जरूर कीजिएगा। एक दूसरे के साथ आपने ताउन कर लेंगे, मतलब किसी को वो अच्छा लगे आपने वो दे देना, मतलब जो भी ऐसा लगे आपने जरूर करना। जी बच्चों का भी इसी तरह का मामला है, जिसको पूरे आ जाएंगे मतलब आपने काम चला लेंगे। जी शुरू करेंगे जी, क्योंकि हमने तो तुक्का लगाया जी। लिस्ट में भाई वीडियो बंद कर।